السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء طالبات، آج ہم اپنی درسی کتاب میں صفحہ نمبر 123 خاکہ نگاری میں خاکہ نمبر 2 عرف باقر مہدی، اس کا آج مطالعہ کریں گے۔ خاکہ نگار ہے یوسف ناظم۔ یوسف ناظم اردو کے مشہور طنز و مزاح نگار تھے۔ وہ 18 نومبر 1918 عیسوی کو جالنہ میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے جامعہ عثمانیہ حیدرآباد سے ایم اے کی ڈگری حاصل کی۔ اب یوسف ناظم جو ہے انہوں نے جامعہ عثمانیہ حیدرآباد کی جو یونیورسٹی ہے اس سے انہوں نے ایم اے کی ڈگری حاصل کی۔ اب ایم اے یعنی کہ ماسٹر آف آرٹس، جیسے ایم اے ہے، ایم کام ہے، ایم ایس سی ہے، یہ ماسٹر ڈگری ہے، پوسٹ گریجویشن ڈگری ہے، یہ انہوں نے حاصل کی حیدرآباد یونیورسٹی سے۔ ملازمت کے بعد اب ڈپٹی لیبر کمشنر کے طور پر وظیفہ یاب ہو گئے۔ اب دیکھو ایک لفظ ہے طلباء طالبات، وظیفہ۔ اب وظیفہ کے معنی، اب جیسے یہ لیبر کمشنر تھے، اس کے لیے ان کی زبان میں وظیفہ یعنی جس کو ہم لوگ پینشن کہیں گے۔ اگر اسٹوڈنٹ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس کو وظیفہ ملتا ہے تو اس کو اسکالرشپ کہیں گے۔ دیندار لوگ یا پھر ہم اپنا عام طور پر اپنا جو معمول رہتا ہے، صبح اٹھنے کے بعد رات میں سونے سے پہلے جو ہم اذکار پڑھتے ہیں یا وظیفہ پڑھتے ہیں، جس کو ہم لوگ تسبیحات کہیں گے، سورہ ملک ہے، سورہ سجدہ وغیرہ ہے، ایسی سورتوں کی تلاوت کرتے ہیں، تو روزمرہ کا جو معمول رہتا ہے اسے بھی وظیفہ کہا جاتا ہے۔ تو یہ وظیفہ یاب ہو گئے، یہاں مراد کیا آئے گا کہ ان کو پینشن ملی، وہ سبکدوش ہو گئے۔ انہوں نے کئی اخبارات و رسائل میں کالم لکھے۔ ان کے مضامین اور کالم طنز اور شگفتگی کا حسین امتزاج پیش کرتے ہیں۔ امتزاج کے معنی تھے ملاوٹ کے، امتزاج کے معنی آتے ہیں ملاوٹ کے۔ پھر اس کے بعد ان کا اسلوب نگارش دلچسپ اور سلجھا ہوا تھا۔ اب ہم لوگ بارہا کئی مرتبہ یہ لفظ ہماری کتاب میں تقریباً ہر سبق میں یہ لفظ آتا ہے اسلوب۔ اسلوب کے معنی ہوتے ہیں طریقہ، جس کو ہم ڈھنگ کہیں گے، انداز کہیں گے، یا پھر اس کو اسٹائل کہیں گے یا طریقہ کہیں گے۔ تو ان کا لکھنے کا انداز بالکل سلجھا ہوا تھا۔ پھر اسی کے ساتھ کیف و کم، فٹ نوٹ، فقط، بالکیات وغیرہ ان کے مضامین کے مجموعے ہیں۔ ان کی کتابیں پلک نہ مارو بچوں کے لیے لکھے گئے دلچسپ مضامین کا مجموعہ ہے۔ یوسف ناظم ممبئی میں قیام پذیر تھے۔ وہیں 23 جولائی 2009 عیسوی کو ان کا انتقال ہوا، یعنی ممبئی میں آ کر بسے تھے، وہیں پہ انہوں نے اپنی ادبی جو زندگی تھی اس کو آگے بڑھایا۔ یعنی بہت زیادہ طنز و مزاح نگار کے مصنف مانا جاتا ہے ان کو۔ اس کے بعد وہ خاکہ بھی لکھا کرتے تھے، اور بہت سے اخلاق و عادات میں بہت ہی اچھے انسان تھے۔ ہنسانا، لوگوں سے ہنستے ہوئے گفتگو کرنا، لوگوں کے غم و غصے کو یا پھر لوگوں کے جو اپنی زبان میں ٹینشن کہیں گے، تو ان کے ساتھ ملنے کے بعد یہ ٹینشن، یہ تمام چیزیں دور ہوا کرتی تھی۔ یعنی مزاج ان کا ہنسنے ہنسانے کا تھا۔ اب دیکھو باقر مہدی ہے جن کے بارے میں خاکہ لکھا ہے، یوسف ناظم نے لکھا ہے۔ تو خاکہ نگار نے، یوسف ناظم نے باقر مہدی کے بارے میں جو خاکہ لکھا ہے، پہلے ہم باقر مہدی کا تعارف پڑھتے ہیں، ان کی جان پہچان پڑھتے ہیں کہ وہ کون تھے۔ باقر مہدی 11 فروری 1927 عیسوی کو لکھنؤ کے قریب ایک قصبہ رودولی میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے لکھنؤ یونیورسٹی میں تعلیم حاصل کی اور زندگی کا بڑا حصہ ممبئی میں گزارا۔ اس وقت اور آج بھی عام طور پر شعراء، ادبا یہ ایک ہندوستان کے کونے کونے سے آ کر اکثر ممبئی میں بس جاتے تھے، آج بھی بستے ہیں، اور مقصد یہ رہتا ہے کہ وہاں سے اپنی ادبی زندگی کا آغاز کرے۔ اور ادبی زندگی میں دو باتیں ہیں، ایک تو مشہور ہونا اور دوسرا ہے کہ اپنی ادبی خدمات پیش کرنا۔ تو اس کا جو بہترین پلیٹ فارم ہے وہ ممبئی ہے، شہر ہے۔ اس ممبئی شہر کی وجہ سے یہ ادبا اور یہ شعراء ان کو ایک پلیٹ فارم ملتا ہے اور یہ ادبی زندگی میں اپنی خدمات پیش کرتے رہتے ہیں۔ انہوں نے شاعری کے علاوہ نثر میں بہت کچھ لکھا ہے۔ ٹوٹے شیشے کی آخری نظمیں کے علاوہ سیاہ ان کی شاعری کا کلیات ہے۔ آگہی و بے باکی اور تنقیدی کشمکش ان کے تنقیدی مضامین کے مجموعے ہے۔ باقر مہدی کا شمار جدیدیت سے وابستہ ان شعراء میں ہوتا ہے جنہوں نے اپنی شاعری میں نئے تجربات کی کو راہ دی۔
बाकर मेहदी ने नज़में और गजलें दोनों में तबाह आजमाई की, यानी उन्होंने दोनों में तबाह आजमाई की, उन्होंने दोनों में तबाह आजमाई की। मतलब यह है कि उन्होंने दोनों इसमें अपनी किस्मत को आजमाने की कोशिश की। और फिर इनका इंतकाल 23 सितंबर 2007 को मुंबई में हुआ। इनका इंतकाल भी कहाँ हुआ? मुंबई में हुआ। अब आइए तुलबा तालिबा, अब हम इस खाका निगारी जो है उस खाके का इब्तिदा करते हैं। देखिए खाके में इब्तिदाई अल्फाज कितने प्यारे हैं। बाकर मेहदी के नए मजमूए कलाम टूटे शीशे की आखिरी नज़्में, ये आखिरी उनका कलाम था कि इशात पर मुंबई के अदीबों और शायरों की एक अदबी नशिस्त 10 दिसंबर 1972 ईस्वी को मुनाकिद हुई। शोरा और उद्बा का मामला ये रहता है कि जब भी कोई शोरा या उद्बा में से कोई किताब लिखता है तो उसके बारे में एक जलसा रखा जाता है, तारीफी जलसा। उसके बाद उनकी हिम्मत अफजाई के लिए एक जलसा मुनक्किद किया जाता है और अपनी अपनी राय पेश की जाती है। यह मजमून इसी जलसे में पढ़ा गया था। मजमून पढ़ने से पहले राकिब ने हाजिरीन जलसा के रूबरू साहिब महफिल से इकरारनामा लिखवाया कि वो इस मजमून के बारे में राकिब से कोई बास-पूस नहीं करे या न करे, नहीं करेंगे। अब देखो लफ्ज आएगा राकिब, माने तो इसको होते कि रकम करने वाला, लेकिन यहां मुराद क्या है? रकम करने वाला है मुराद, लेकिन रकम करने वाला मतलब यह है लिखने वाला। अब इन्होंने मजमून लिखा यूसुफ नाजिम ने बाकर मेहदी के बारे में और कहा कि मैं ये मजमून यहां पढ़ता हूं, लेकिन आप पहले ये वादा कीजिए, यकीन दिलाए कि आप इसके बारे में कोई सवालात नहीं पूछेंगे। ऐसा नहीं है कि बाकर मेहदी साहब किताबी सूरत में पहली बार छपे हो, उनकी कम से कम 3 किताबें पहले भी शाये हो चुकी है। लेकिन जब उनकी आखिरी नज़्मों का मजमुआ शाये हुआ तो उनके करीब के दोस्तों को बड़ी मसरत हुई और इसी मसरत के इजहार के सिलसिले में उन्होंने ये जलसा मुनक्किद किया कि बाकर मेहदी साहब को उनकी आखिरी नज़्मों की इशात पर मुबारकबाद दी जाए। अब यहां देखो दो चीजें हैं। एक लफ्ज आया है मसरत, एक लफ्ज आया है मसरत जिसके माने होते हैं खुशी। एक लफ्ज आया है मसरत जिसके माने होते हैं खुशी। अब यहां बाकर यूसुफ नाजिम ने दोस्तों पर पहला ही तंज मतलब तंजो मिजा वाला पहला ही तंज ये किया है कि उनकी किताब का नाम है टूटे शीशे की आखिरी नज़्में दिया उन्होंने। तो इन्होंने उन पर तंज किया है कि ऐसा लगता है कि ये जो किताबी शक्ल में आई हुई किताबी मजमुए कलाम जो है और इसमें जो नज़्में है ये शायद शायर की आखिरी नज़्में है। इनका मतलब कहने का यह है कि इनके बाद इनकी हयाती क्या हो जाएंगे? खत्म हो जाएंगे। वो अपने दोस्तों से इस जहानत की तवक्का न रखते होंगे। और फिर और एक तंज किया कि शायद उनको ये खबर न हो कि उनके दोस्त इस तरह से भी कर सकते हैं। बहरहाल मुझे भी इस खुशी में शरीक होना था, इसलिए मैं भी उनकी खिदमत में नजराने अकीदत लेकर हाजिर हुआ हूँ। और आप जानते हैं कि आजकल के जमाने में अकीदत का हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं होता। यहाँ और एक तंज उन्होंने किया कि जो इंसान की मोहब्बत होती है उस मोहब्बत का आज की दुनिया में हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं होता। मतलब जो मोहब्बतें आपस में दिखाई जाती है वो मोहब्बतें यहाँ फर्जी होती है या तो फिर मतलबी हुआ करती है। बाकर मेहदी शायर है, नक्काद है, मुकर्रिर है। अब नक्काद कहते हैं तनकीद करने वाले को, नक्काद कहते हैं तनकीद करने वाले को, और मुकर्रिर कहा जाता है तकरीर करने वाले को। तो ये तकरीर भी करते थे, तनकीद भी करते थे और उसी के साथ सबसे बड़ी बात थी कि वो शायर भी थे। लेकिन अपने गैर मकबूल मजमून में उनकी शायराना सलाहियतों और तनकीदी शऊर के बारे में मेरा कुछ अर्ज करना सरासर नाइंसाफी होगा। यूं नाइंसाफी से बाकर मेहदी साहब को बड़ा शगफ रहा है, लेकिन मुझे उनकी सोबत का फैज हासिल होने के बावजूद नाइंसाफी की मश्क नहीं हुई है। इसलिए मैं इससे एहतिराजी करूंगा और सिर्फ उनकी शख्सियत के बारे में रफाए आम की खातिर कुछ अर्ज करूंगा। अब यहां देखो एक लफ्ज उन्होंने इस्तेमाल किया है, लफ्ज है फैज। अब फैज के माने होते फायदा। तो इन्होंने कहा कि मैं उनके साथ रहा, उनसे नफा हासिल करने की कोशिश की, लेकिन मैं कुछ नफा हासिल नहीं कर सका। लेकिन मैं उनकी जात के बारे में और उनकी सिफात के बारे में यहाँ मुख्तसर तौर पर आप लोगों के सामने कुछ न कुछ
पेश करने की क्या करूंगा, कोशिश करूंगा। लेकिन इन तमाम चीजों से मेरा मुत्तफिक होना जरूरी नहीं, इससे मेरा मुत्तफिक होना जरूरी नहीं है। खुद अपने आप से मुत्तफिक न होने का फन मैंने साहिब मौसूफ से सीखा है। यानी है और एक तंज उन्होंने किया कि बाकर मेहदी जब खुद अपने आप से मुत्तफिक नहीं थे तो मैं अपनी अपनी बातों से क्यों मुत्तफिक हो जाऊं। मौसूफ अपने आप से भी मुत्तफिक नहीं हुआ करते। इख्तिलाफ राय की यह मंजिल तनकीद के मैदान में आखिरी मंजिल समझी जाती है। बाकर मेहदी को इस मंजिल पर पहुंचते हुए मुद्दत हो गई। यानी इधर बताने की कोशिश की है कि हर चीज में इख्तिलाफ राय होता है, यानी जो पेश किया जाता है उसके बारे में इख्तिलाफ किया जाता है, और ये आखिरी मंजिल तनकीद की हुआ करती है। लेकिन बाकर मेहदी तो पहले ही इस मंजिल पर पहुंच चुके थे। यह कोई अफवाह नहीं बल्कि नाकाबिले तरदीद हकीकत है कि बाकर मेहदी साहब भी रुदौली जैसे मरदुम खेज इलाके में पैदा हुए। उस इलाके का नाम बताया जा रहा है जिस इलाके में ये पैदा हुए, और कहा जाता है कि वहां आबादी ज्यादा थी और उसी आबादी गुंजान आबादी में इनकी पैदाइश हुई है, परवरिश वही हुई है। नक्कादों को यूं भी कुदरत की तरफ से खुली इजाजत है कि वो जहां चाहे पैदा हो सकते हैं। अब वहां और एक तनकीद मतलब तंज है, तनकीद नहीं है, एक हल्का इशारा है कि अल्लाह ताला ने जहां चाहे उनको पैदाइश के लिए कहा गया। मतलब यहाँ कहने का मतलब यह है कि नक्काद ये ऐसे होते हैं कि जहां भी जाएंगे अपना तनकीद का कलम रोकते नहीं बल्कि उससे कुछ न कुछ नश्तर लगाते रहते हैं। तो यहाँ इनका कहने का मतलब है कि उनको आजादी है दुनिया के किसी भी इलाके में जहां चाहे वहां यानी पैदा हो, परवरिश हो उनकी। बाकर मेहदी की विलादत से उनके वतन मालूम को एक फायदा यह हुआ कि उनके बाद फिर किसी नक्काद की हिम्मत नहीं हुई कि वो रुदौली में पैदा हो। अब वो इलाके का नाम लेकर कह रहे कि जिस इलाके में पैदा हुए फिर उसके बाद किसी शख्स ने यानी किसी नक्काद ने, तनकीद करने वाले ने ये हिम्मत नहीं कि उस इलाके में पैदा हो। अब यहाँ एक तंज ये है कि ये खुद ही नक्काद इतने बेहतर है और इतनी ज्यादा तनकीद करते हैं कि इसके बाद कोई तनकीद निगाह उस इलाके में पैदा न हो पाया, नहीं हुआ। बाकर मेहदी ने लखनऊ में तालीम पाई। जो कुछ उन्होंने पाया इसे तालीम ही कहा जा सकता है। जब भी कोई शख्स लखनऊ के तकल्लुफ और वहां के आदाब और तकल्लुफात का जिक्र करता है, मैं बाकर मेहदी साहब के हवाले से उनकी तरदीद करता हूँ। जब भी मुझे कोई लखनऊ के बारे में कोई पूछता है तो मैं कुछ इसके बारे में नहीं कहता हूँ, डायरेक्ट बाकर मेहदी का नाम लेता हूँ और मुझे इत्मीनान हो जाता है कि जो पूछना चाहता है वो तमाम चीजें बाकर मेहदी के पास मौजूद है, बाकर मेहदी की जिंदगी में मौजूद है। वहां के आदाब और तकल्लुफात मैं बाकर मेहदी साहब के हवाले से उनकी तरदीद करता हूं कि हाँ ये जो आप बता रहे हैं ये चीजें सब उनमें मौजूद है। यानी उनका इलाके का नाम लिया जाए या उनका लिया जाए बराबर है। और वो शख्स बिल्कुल मुतमईन हो जाता, सामने वाला भी ये सुनकर खामोश हो जाता है कि नहीं ये जो कह रहे हैं ये हवाले के साथ बात है और इसमें कोई भी दो राय नहीं है। बाकर मेहदी की शख्सियत का ये पहलू बड़ा ताबनाक है। यानी उनकी जिंदगी का ये जो पहलू है, ये जो हिस्सा है, ये जो खूबी है वो बहुत रोशन है। यानी आम लोग भी इसको परख सकते हैं या महसूस कर सकते हैं। और अगर चार नहीं तो कम से कम 3 दांगे आलम में जरूर मशहूर है। यानी अगर चारों ओर या चारों तरफ अगर इनकी ये शोहरत या मकबूलियत अगर न भी हो तब भी कोई बात नहीं, लेकिन तकरीबन 3/3 या फिर तो कहेंगे उसके 75% तो ये बात मशहूर है। और बाकर मेहदी इसी नाम से या इसी खूबी से पूरे इलाकों में छाए हुए हैं या उनको लोग पहचानते हैं। अजीज तुलबा तालिबात, इसका अगला हिस्सा इंशाअल्लाह आइंदा लेक्चर में किया जाएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।